Hello students, welcome to another English literature lesson. Today we are going to study a very short but very interesting poem considering the Snail by Tom Gunn. First let us know a little about the poet. Tom Gunn. Tom Gunn was a British poet born in 1929 and he later spent many years in the United States. He is known for his precise and carefully chosen language. His poetry often begins with a very close observation of the ordinary world around us and what is particularly interesting about Tom Gunn is that he can take a very ordinary subject and turn it into a deep philosophical reflection. A snail, for example, is a very small and common creature, but Gunn does not simply describe the snail. He observes its movement and begins to think about desire, purpose, determination, and the meaning of progress. His poetry also combines traditional poetic techniques with modern ideas and experiences. So, although his language may appear simple and his subject may appear ordinary, there is often a deeper meaning beneath the surface. And now we will know about the poem. So, this is exactly we are going to see in the considering the snail. Here in this poem, poet observes a tiny snail moving very slowly through wet grass, but gradually the simple observation becomes a reflection on itself. Tom Gunn observes this tiny creature moving very slowly after the rain, and then he starts wondering about the mysterious force that makes it move. The snail does not know where it is going, yet it keeps moving through this tiny creature. Gunn makes us think about our own lives, our desires, our struggles, and our determination to move forward. So, while reading the poem, keep one question in mind: what can a slow moving snail teach us about life? So let us see what it teaches us. This is the central idea of the poem. Slow progress is still progress. And through the slow moving snail, the poet explores the power of desire, determination, and purposeful movement in life. So here snail is a symbol of persistent, slow passion and deliberate progress. Let's see line by line explanation of the poem. It is stanza first. The snail pushes through a green night where the grass is heavy with water. So स्टूडेंट्स, यहाँ पोइट टॉम गन एक स्नेल को ऑब्जर्व कर रहा है. बारिश हुई है और ग्रास कम्प्लीटली वेट और हैवी हो गई है. ग्रास इतनी डेंस है कि स्नेल को उसके बीच से जाते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी ग्रीन नाइट के अंदर ट्रेवल कर रहा हो. यहाँ ग्रीन नाइट का मतलब एक्चुअल नाइट नहीं है. पोइटिक मेटाफर यूज़ कर रहे हैं. वेट और थिक ग्रीन ग्रास नल को चारों तरफ से कवर कर लेती है, इसलिए उसके लिए वो एनवायरनमेंट एक ग्रीन डार्कनेस जैसा बन गया है. एंड मीट्स ओवर द ब्राइट पाथ ही मैक्स. अब देखिए, स्नेल जब ग्रास के बीच से मूव करते हैं तो उसके बॉडी से एक स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है. इस वजह से उसके पीछे एक ब्राइट शाइनी पाथ बन जाता है. सो स्नेल इज लीविंग अ शाइनिंग ट्रेल बिहाइंड हिम. यहाँ एक देखो इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है. डार्क वेट अर्थ है और ग्रीन डार्कनेस है, लेकिन जो पाथ है पीछे स्नेल के वो ब्राइट है. इसका मतलब है कि डार्कनेस के बीच भी स्नेल अपनी प्रेजेंस और डायरेक्शन क्रिएट कर रहा है. सो वेयर रेन हैज़ डार्कन द अर्थ्स डार्क. रेन ने ऑलरेडी अर्थ को डार्क कर दिया है. रेन हैज़ डार्कन द अर्थ्स डार्क मतलब पहले से ही अर्थ डार्क है और डार्क कर दिया है रेन ने. वेट सॉइल और भी डार्क दिखाई दे रही है. गीली गीली जो मिट्टी है और भी दिखाई दे रही है, ब्लैक दिखाई दे रही है. सो अर्थ डार्क है, घास गीली है और ग्रीन डार्कनेस है, और इस डार्कनेस के बीच स्नेल को शाइनी ट्रेल क्लियरली विजिबल है. सो ही मूव्स इन अ वुड ऑफ डिज़ायर. स्टूडेंट्स, यहाँ वुड का मतलब है फॉरेस्ट और डिज़ायर का मतलब है इच्छा.
यहाँ पॉइंट सिर्फ स्नेल की फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, स्नेल एक सिंबॉलिक फिगर बन जाता है। स्नेल बहुत स्लोली मूव करता है बट कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। उसके अंदर से एक डिज़ायर डिज़ायर जो है वो एक है जो उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती जा रही है। सो हम कह सकते हैं कि स्नेल जो स्लो मोमेंट से चल रहा है लेकिन उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, एक डिज़ायर है ताकि वो एक पर्पसफुल जर्नी की तरफ बढ़ सके। यानी पोइट इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कभी प्रोग्रेस फास्ट होती है, कभी वेरी स्लो, बट व्हाट मैटर्स इज दैट वी कंटिन्यू मूविंग टूवर्ड्स आवर गोल। देखो, सपोज two students are preparing for an examination. One student studies very fast while another student studies slowly, but the second student studies regularly and never stops. Who is more likely to reach the goal? The one who keeps moving. Exactly यही quality point स्नेल में देखते हैं, slow but steady movement. So the snail is slow but it is not directionless. It moves with desire and purpose. और इसी वजह से स्नेल पॉइंट में persistence, determination and instinct to move forward का सिंबल बन जाता है। इसी स्टेंजा को हम एक पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ग्रीन नाइट है, क्योंकि घनी भीगी हुई घास है ना, और घोंगे के लिए ये अंधेरे जैसी लगती है। ग्रीन घास जो है वो हैवी है विद वाटर, मतलब बारिश का पानी इतना आया है कि घास क्योंकि हल्की होती है पानी के बोझ से वो झुक गई है और एक दूसरे से मिल रही है। और घोंगा ब्राइट पाथ ही मैक्स, मतलब कि घोंगा चलते समय अपने पीछे, ये आप क्या देख सकते हो इस पिक्चर में कि अपने पीछे एक चमकदार सफ़ेद निशान छोड़ता है। रेन हैज़ डार्कन्स, अब देखो इसमें कितना अंधेरा लग रहा है, बारिश से मिट्टी और भी गहरी काली हो गई है। और वो जो है मूव्स इन अ वुड ऑफ डिज़ायर, इच्छाओं के जंगल में आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर एक आगे बढ़ने की चाह है। तो इस पिक्चर से मुझे लगता है आपको पूरा आइडिया क्लियर हो गया होगा कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। स्टेंजा सेकंड है pale antlers, ball steering as he hunts. I can tell what power is at work, drenched there with purpose, knowing nothing. What is a snail's fury? All I think is that if latter. So pale antlers barely staring as he hunts. यहाँ pale antlers से स्नेल के जो फीलर्स का रेफरेंस है, आप अभी पिक्चर में हम देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। स्नेल के हेड पर दो डेलिकेट फीलर्स होते हैं जो एंटलर्स जैसे दिखाई देते हैं, जैसे सींग होते हैं ना। सो बैरली स्टीयरिंग का मतलब है दे आर मूविंग वेरी स्लाइटली एज ही हंट्स। स्नेल अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर कर रहा है, हॉन्ट्स में एक्सप्लोर कर रहा है, फूड या अपनी डिज़ायर डेस्टिनेशन को सर्च कर रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्नेल वेरी स्लोली मूव कर रहा है, उसके डेलिकेट फीलर्स ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम मूव कर रहे हैं, एज इफ ही इज़ केयरफुली सर्चिंग हिज वे थ्रू द वेट ग्रास। आई कैन नॉट टेल व्हाट पावर इज़ एट वर्क। अब पॉइंट खुद वंडर कर रहे हैं यहाँ पे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइनी स्नेल के अंदर कौन सी पावर काम कर रही है। स्नेल इतना स्मॉल है, मूवमेंट इतनी स्लो है, फिर भी वो कंटिन्यूसली मूव्स फॉरवर्ड कर रहा है। पॉइंट को वंडर है कि व्हाट मेक्स दिस टाइनी क्रिएचर मूव, व्हाट ड्राइव्स इट फॉरवर्ड। यानी पॉइंट स्नेल की इनर मोटिवेशन, इंस्टिंक्टिव फोर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ड्रेंस्ड देयर विद पर्पज, नोविंग नथिंग। ड्रेंस्ड का मतलब है कम्प्लीटली सॉक्ड विद वाटर, बट यहाँ इसका एक डीपर सेंस भी है। स्नेल ड्रेंस से कम्प्लीटली वेट है, पूरी तरह से गीला है, बट एट द सेम टाइम जिस मतलब कम्प्लीटली जिस तरह से पानी से गीला है वो उसी तरह से ही इज़ ऑल्सो ड्रेंस्ड विद पर्पज। यानी स्नेल को कॉन्शियसली कोई प्लान नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि वो फिलोसॉफिकल सेंस में कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मोमेंट पर्पजफुल लगती है। नोविंग नथिंग है ना।
का सिग्निफिकेंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्नैल ह्यूमन बीइंग की तरह कॉन्शियसली प्लान नहीं बनाता, उसको फ्यूचर का नॉलेज नहीं है, कोई कॉन्शियस एम्बिशन नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल रीजनिंग नहीं है, येट मी मूव्स विथ पर्पस। यहाँ पॉइंट इंस्टिंक्ट और वर्सेस कॉन्शियस नॉलेज का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। द स्नैल डज नॉट नो बट इट मूव्स। सो व्हाट इज स्नैल्स फ्यूरी? अब पोइट एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज अ स्नैल्स फ्यूरी? फ्यूरी का सिंपल मीनिंग है इंटेंस एनर्जी, फोर्स, पैशन, डिटर्मिनेशन। पोइट सोच रहे हैं कि आखिर इस टाइनी स्नेल के अंदर इतनी इंटेंस एनर्जी क्या है जो इसे कंटिन्यूअसली मूव करने पर मजबूर करती है। नॉर्मली हम फ्यूरी का एंगर से कनेक्ट करते हैं, बट गुस्सा, एग्रेशन, वायलेंस, बट स्नेल के केस में फ्यूरी का मीनिंग जो है वो एंगर से नहीं है, बट इंटेंस डिज़ायर, ड्राइव है, पावर अर्ज टू मूव फॉरवर्ड, जो इसे आगे पुश करती जा रही है। ऑल आई थिंक इज दैट इफ लेटर, so you can imagine that a very small snail, and it is very slow, it is wait, it cannot see very far, and it does not even consciously know where it is going, still it keeps moving. This continuous inner drive is what the poet calls snail's fury. I think is that if later, यहाँ देखो थॉट इनकम्प्लीट है अभी, पॉइंट अब इमेजिन करने वाले हैं कि अगर फ्यूचर में वो स्नेल की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो शायद उससे इस मिस्टीरियस फ्यूरी का कुछ मीनिंग समझ में आए। इसलिए फ्लैटर को नेक्स्ट लाइन के साथ हम रीड करेंगे। यहाँ पॉइंट अपनी ऑब्जर्वेशन को फ्यूचर इमेजिनेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस एंटायर स्टेंजा को हम देख सकते हैं कि एक स्नेल जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, उस ना, और उसके फीलर्स जो हैं वो सर्च करते हुए चलते हैं। यहाँ पॉइंट उसको ऐसे मूव करते हुए ऑब्जर्व करता है, और पॉइंट ये वंडर करता है कि इसका इनर पावर क्या है, और उसको कुछ भी पता नहीं है सेल को वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, बट इट मूव्स। दिस मिस्टीरियस ड्राइविंग फोर्स इज़ फ्यूरी। So, the snail does not possess conscious knowledge, yet it possesses instinctive purpose. और यही कॉन्ट्राडिक्शन पोएम को इंटरेस्टिंग बनाता है, नोविंग नथिंग बट स्टिल मूविंग विद अ पर्पस। सो वी विल मूव टू द पिक्चर, सो यू कैन सी हियर वेल एंटलर्स। ये हैं एंटलर्स जो आप देख रहे हैं। barely स्टीयरिंग मतलब मूविंग वेरी स्लाइटली हियर, एंड ड्रेस्ड, ड्रेस मतलब पूरा पानी से भीगा हुआ, और एज ए हॉन्ट्स द स्नेल सर्चेज फॉर फूड, कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज़ की तलाश में है। पावर एट वर्क, कुछ एनर्जी ऐसी हम उसमें देख रहे हैं जो उसे कंटिन्यूसली इट कीप्स मूविंग हिम फॉरवर्ड। और देर इज़ ऑल्सो ए पर्पज, knowing nothing, he had no knowledge or awareness of his journey, and this intense drive is called Snell's fury. We will move to the next stanza. So यहाँ पर हम देखते हैं अब स्टेंजा थर्ड। आई पार्टेड द ब्लेड्स अबो टनल, द टनल। सो ब्लेड्स क्या है यहाँ पर? ब्लेड्स ऑफ ग्रास। पॉइंट ग्रास की ब्लेड को हटाकर उनके नीचे देखता है। ग्रास के बीच स्नेल ने एक छोटा सा टनल पाथ बना लिया है, मतलब जो एक सुरंग की तरह लगता है। सो इमेजिन कीजिए घनी घास के बीच स्नेल मूव कर रहा है। पोइट उस ग्रास को साइड करता है टू सी व्हाट इज हैपनिंग अंडरनीथ, एंड सो द थिन ट्रेल ऑफ ब्रोकन वाइट अक्रॉस लीटर। पोइट को वहाँ एक थिन वाइट ट्रेल दिखाई देता है ना, रास्ते का चिन्ह। स्नेल जब मूव करता है तो पीछे एक स्लाइमी सिल्वर वाइट ट्रेल छोड़ता है, जैसा हमने अभी पिक्चर में देखा था। सो लीटर का मतलब क्या होता है? फॉलन लीव्स होता है, स्मॉल पीसेज ऑफ डेड ग्रास एंड नेचुरल डेब्रिज जो ग्राउंड पर पड़े हैं। सो poet here sees a thin broken white trail running across the fallen leaves and debris. I would never have imagined the slow passion. This is very important line. यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि एक स्नेल के अंदर इतनी स्लो पैशन हो सकती है। स्लो पैशन एक पैराडॉक्स है। नॉर्मली पैशन मीन्स इंटेंस एनर्जी, एक्साइटमेंट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बट स्नेल मूव्स वेरी स्लोली। सो पॉइंट कंबाइंस स्लो
प्लस पैशन। मूवमेंट स्लो है बट इनर डिज़ायर इंटेंसिटी पावरफुल है। स्नेल की बॉडी स्लो है लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन वीक नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टू दैट डेलिबरेट प्रोग्रेस। डेलिबरेट का मतलब होता है कॉन्शियस लुकिंग, पर्पजफुल, केयरफुली डायरेक्टेड प्रोग्रेस, है ना। प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना। स्नेल रैंडमली मूव नहीं कर रहा है, उसकी मूवमेंट पॉइंट को पर्पजफुल और डिटरमाइंड दिखाई देती है। डेलिबरेट प्रोग्रेस का मतलब हुआ धीमी है उसकी गति लेकिन पर्पजफुल और लगातार आगे बढ़ने की गति है। सो here, when the poet moves the grass aside, he discovers the tiny white trail left by the snail. Looking at this trail, he suddenly realizes that behind the snail's extremely slow movement, there is a strong inner passion. The snail may be physically slow, but its movement is deliberate and purposeful. The poet had never imagined that such a tiny creature could possess such intense determination. So, यहाँ पर आप इसको पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं सिस्टेंजा को। आई पार्टेड ब्लेड्स अबो द पॉइंट सो यहाँ पर इन ब्लेड्स को, जो ग्रास की जो ये है पत्तियाँ, ब्लेड्स, इनको थोड़ा सा मूव करता है। और ये जो टनल है, ग्रास के बीच में से बनी हुई टनल है, पाथ है जहाँ से स्नेल गुजरता है। और ये है थिन ट्रेल जिसको आप देख रहे हो वाइट कलर का। ये डेलिब्रेट प्रोग्रेस है इसकी, स्लो है बट it is continuously moving towards its way. Okay, now the conclusion. देखो, यहाँ पॉइंट को एक स्नेल से एक लार्जर ह्यूमन लेसन मिलता है। हमें सबको एक इस छोटे से जीव से कुछ सीखने को मिलता है। स्लो डज नॉट मीन वीक, स्लो डज नॉट मीन विदाउट पर्पज। रियल प्रोग्रेस कैन बी स्लो बट डिटरमाइंड. The snail teaches us that the speed of progress is less important than the determination behind it. Slow passion poem का key phrase है, body moves slowly but the inner impulse is intense. Slow progress is still progress. No journey is too small. Even the slowest movement, when driven by desire and determination, can lead to a meaningful progress. तो आज हमने इस पोएम को पढ़ा है, तो आप सभी इससे एक सीख ले सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, है ना, कि हम जो भी काम करें उसको कंटिन्यूअसली करते रहें। भले ही हम धीरे ही करें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन हम उसको रोज़ करें तो हम जीत जाएंगे। ओके, थैंक यू।